बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेमीकंडक्टर के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। A semiconductor is a material that is an insulator at very low temperature but which has a sizable electrical conductivity at room temperature. A semiconductor is a substance, usually a solid chemical element or compound, that can conduct electricity under some conditions but not others, making it a good medium for the control of electrical current. The word semiconductor is derived from the materials act as a conductor sometimes but behave as a non-conductor of electricity at other times. The earliest semiconductor materials are germanium and silicon. Nowadays, greater than 85% of all microchips are made from silicon material. The distinction between a semiconductor and an insulator is not very well defined, but roughly a semiconductor is an insulator with a band gap small enough that its conduction band is appreciably thermally populated at room temperature. It has a resistivity between that of conductor and insulator. The resistivity of semiconductor decreases as temperature increases. So, at higher temperature, semiconductors act as conductors, but at lower temperatures, they act as insulators. Its conductance varies depending on the current or voltages applied to the control electrode or when on the intensity of radiation by infrared, visible light, ultraviolet, or X-rays. Silicon dioxide is an example of a nearly perfect insulator, while silicon is the archetypical semiconductor. Many materials that in the past would have been considered insulators are now called wide band semiconductors. Semiconductor material do not have free electrons to support the flow of electrical current through them at room temperature. However, valence electron may become free electrons if sufficient energy is induced into the material. For example, by heating the material, we can induce the energy into the material. The specific properties of a semiconductor depend on the impurities or dopant materials added to it. An n-type semiconductor carries current mainly in the form of negatively charged electrons in a manner similar to the conduction of current in a wire. A p-type semiconductor carries current predominantly as electron deficiencies called holes. A hole has a positive electric charge equal to and opposite to the charge of an electron. Elemental semiconductor includes antimony, germanium, arsenic, selenium, boron, silicon, carbon, sulfur. Silicon is the best known of these, forming the basis of most integrated circuits. Common semiconductor compounds include germanium arsenide, indium antimonide, the oxide of most metals, gallium arsenide is widely used. Intrinsic semiconductor
pure silicon, intrinsic semiconductor means it is free from any impurities, it is pure. So one silicon is one which is pure enough that impurities do not appreciably affect its electrical behavior. In this case, all carriers are created by thermally or optically excited electrons from the full valence band into the empty conduction band. The band gap or energy spacing between the valence band and the conduction band corresponds to the energy necessary to free charge carrier in this way. Here we discuss that what intrinsic semiconductor or pure silicon structure exist. In this figure, you can see that silicon atoms are bonded with covalent bond because covalent bonding is a sharing of electron phenomena in which both silicon atoms share their electrons to other silicon atoms. So one silicon atom can share 4 electrons. So the 4 silicon atoms are nearby bonded with one silicon atom. Silicon crystal with covalent bond between silicon atoms of a pure semiconductor is shown here. Doped semiconductor. The structure of silicon can be altered to greatly enhance its conductivity by adding small amounts of other elements to the material, though a process known as doping. Doping is the process of adding certain amounts of some element in pure silicon to improve the conductivity of the semiconductor. The elements added during doping are referred to as the dopants or the impurities because the silicon is no longer pure. The more impurity added, then the higher the conductivity of the silicon material or the lowest resistivity of that doped material, silicon. The term impurity used to indicate that another element have been added to the silicon. Doped silicon is also known as extrinsic. The pure is intrinsic, but the doped is extrinsic. In the doped semiconductors, two kinds of impurities are used. The impurities with 5 valence electrons in the outer ring called donors. The semiconductor materials doped with the donor impurity is known as N-type. Semiconductor material, phosphorus, arsenic, antimony are examples of donor impurities. Whereas we can add the impurities with 3 valence electrons in the other ring called acceptors. The semiconductor materials dotted with an acceptor impurity is known as p-type semiconductor material because in this case one vacancy remains as a whole for electron. Atomic structure of the silicon. Silicon is a substance consisting of atoms which all have the same number of protons. So the number of electrons and protons in silicon would be 14. The number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. Silicon atom has 14 electrons. The electronic configuration would be 2 electrons in the first orbit, 8 electrons in the second orbit,
and 4 electrons in the outermost orbit. Here is the electronic configuration chart. अब यहाँ पर देखें ये जो डायमंड उसमें यूनिट सेल किस तरह का होता है और फिर रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट सेल ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन और यूनिट सेल सिलिकॉन का कैसे होता है। तो दाईं तरफ जो ये दिखा रहा है ये बी ए जो है वो डायमंड है और बी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है। सिलिकॉन इस तरह से है और डायमंड इस तरह से है, दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। और कैरियर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ से अब हम स्टार्ट लेते हैं। ये तो उसने सारी उसकी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक बताया। द लाइफ टाइम टा एंड द डिफ्यूजन लेंथ एल of the excess carriers characterize the recombination generation process, जो कि चैप्टर 7 में बयान किया जाएगा, इसमें वो डिस्कस नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद जो है ना बैंड गैप एनर्जी है EG और वो कम्प्लेक्स रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है n-i, ये जो है लिंकेड है टू द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा से। कैरेक्टराइज द एबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी जो है वो क्या है, EG बैंड गैप है। तो नीचे जो है वो बैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, उसको हम समझाएंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो उसके बाद जो है या हम देखते हैं, तो पहले उसको यहाँ पे जो हमने खोली हुई थी स्क्रीन है उसमें देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ खोल रखी थी। और ये हम पहले इसको कर लेते हैं एंड दोबारा से हम न्यू शेयर। ये देखिए, इसमें इसने एक आगर इफेक्ट के मुतालिक बताया और दाईं तरफ जो है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसका तस्वुर दिया। दरम्यान में जो है एक गैप होता है और उसको उसने कहा है कि जी ये एनर्जी गैप होता है। तो ये एनर्जी गैप जो है इसको बताने के लिए हम एक और शायद खोल लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी गैप, एनर्जी फर्मी एनर्जी गैप कह देते हैं, फर्मी एनर्जी गैप। ताकि आपका वो जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर होता जाए। और ये एनर्जी वो जो हम चाह रहे हैं वो ये मालूमात नहीं दे रहा, ताकि जो है डायग्राम बैंड डायग्राम्स जो हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम जो है हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो इसने मतलब है निकाली है, चलो उसको शेयर करा के थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट बनाते हैं और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इसने एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाई है। यहाँ पर ये देखें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सेमीकंडक्टर की बैंड डायग्राम जो है
वो प्लॉट की जाती है। और वो तो इसने जो दिखाई है वो इस तरह से दिखाई है, जो कि पीएन जंक्शन के ऊपर अमल हो रहा होता है। तो फर्मी लेवल वो कह रहा है कि क्या है, फर्मी लेवल जो है वो पार्टिकल तमाम जो है उनकी एनर्जी का एक लेवल है हर जंक्शन के ऊपर। तो वो जो अटैक पे बनता है, तो उसके बाद जो है वो तस्वुर किया, वो उससे हम नतीजा हासिल करते हैं कि हायर कौन सा है और लोअर कौन सा है। तो वो हायर से लोअर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो है कांटेक्ट जंक्शन पे बता रहा है। और इसी तरह से हम एक और ये जो यहाँ पे इसने दिखाई है ये शॉर्ट की बैरियर पर, शॉर्ट की बैरियर भी जो है उसमें जंक्शन ही बनता है। और उस जंक्शन के ऊपर हम देखते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या है। वैलेंस बैंड दिखा रहा है ईवी और कंडक्शन बैंड दिखा रहा है ईसी। और दरम्यान में जो ये सफ़ेद एरिया है ये जाहिर कर रहा है फर्मी एनर्जी गैप को। तो ये जो फर्मी एनर्जी गैप है इसकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर लेंगे। हम दोबारा अब उस टॉपिक पर आते हैं कि हम यहाँ पर, तो यहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि डोनर है या एक्सेप्टर है या प्योर सिलिकॉन है, या जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी का सिलिकॉन, जिसको आमतौर पर इंट्रिंसिक कहा जाता है ये इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में होंगे और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कंडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो दरमियान में गैप होता है, तो उस गैप को क्रॉस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और सोलर सेल की डिजाइनिंग में हमने ये प्रिंसिपल अपनाया है कि ऐसा सोलर सेल बनाया जाए जिससे सोलर एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब होके उस एनर्जी गैप को क्रॉस कर सकें और कंडक्शन बैंड में आ सकें। और इस तरह से जो है हमें सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन फराहम करने लग जाता है सर्किट में। तो दो सिलिकॉन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर व्हेन दे शेयर ईच इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट रूल के तहत कोई भी जो बॉन्डिंग है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जबकि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। तो फिर इस तरह से सिलिकॉन जो है वो ये करता है कि ये शेयरिंग कर लेता है और ये शेयरिंग की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं 8, और इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है और इसको कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। सिंस सिलिकॉन एटम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे कैन कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम के साथ। In the crystalline form, each silicon atom is covalently bonded to 4 neighboring silicon atoms as illustrated in figure 6 में। ये जो फिगर है इसमें हर एटम जो है नज़दीक के जो एटम है उनके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है। तो 4 उसमें वो कहता है कि होंगे। तो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटमों के साथ सिलिकॉन की बॉन्डिंग होगी और ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से स्ट्रक्चर वजूद में आएगा सिलिकॉन क्रिस्टल का। इन द ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिव इन द 3s ऑर्बिटल में एंड द अदर 2 आर प्रेजेंट इन द 3p ऑर्बिटल में। क्योंकि पहला जो शेल है उसमें उसको हम कह रहे हैं के शेल, और के शेल के फिर हमने सब शेल बनाए हुए हैं। तो के शेल में एस शेल मौजूद होगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में जो है एस भी होगा, पी भी होगा। तो पी में जो है वो पी एक्स और पी वाई भी होंगे। तो ये 3 एक्सेस के साथ
मौजूद है P, तो S भी होगा और P भी होगा, तो इसमें ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं P में और S में 2। तो अगर ये P और S तक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है एटम का, तो इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ना ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके ऑक्टेट रूल के तहत जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुकम्मल होगी 8। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में चाहे वो डी तक चले जाएं, क्योंकि एस के बाद पी है, फिर क्या है एस पी डी है, फिर एफ है, और वो जब हम देखेंगे तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो जो ऑक्टेट रूल है वो ओबे नज़र नहीं आता हमें किसी भी एलिमेंट में। तो या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बन जाता है और या फिर वो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला बन जाता है जब हम बॉन्डिंग कराते हैं। तो सिलिकॉन की बॉन्डिंग में हमने कार्बन को मिलाया तो कार्बन भी 4 रखता है और सिलिकॉन कार्बाइड बना लिया, और इसी तरह से हमने सिलिकॉन के साथ कोई और एलिमेंट शेयरिंग की तो हमें एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल मिले, जिसको हम कहते हैं एन टाइप का सिलिकॉन बना दिया है हमने फास्फोरस के साथ जो है, अगर हमने डॉपिंग की है तो वो पी टाइप का बन जाएगा। तो ये तमाम जो केमिस्ट्री है जो हमें ये सोलर सेल की दरकार है, ये आपको आनी चाहिए। तो अगर आप इसके बाद जो आवाज़ आ रही है, हम दोबारा से शुरू करेंगे यहाँ से ही। हेलो जी जी सर। सर आ रही है आवाज। अच्छा, in the ground state 2 valence electrons live in the 3s and the other 2 are present in the 3p orbitals में. In that state only the 2 electrons in the 3p orbitals can form bonds as the 3s जो है वो फुल है, तो वो 3p वाले ही बॉन्डिंग कर सकते हैं, 3s वाले तो फुल है, इसलिए कोई वो बॉन्डिंग में किरदार अदा नहीं करते। इन द सिलिकॉन क्रिस्टल where every atom is symmetrically connected to 4 other atoms of silicon, वो जो के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो कहलाएंगे sp3। तो ऐसी सूरत में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चूंकि सिलिकॉन में s भी मौजूद है, p भी मौजूद है। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में वो कहता है कि बॉन्डिंग जो होगी वो sp3, p के 3 होते हैं तो इसलिए sp3 लगा रहे हैं, हाइब्रिड्स बन जाएंगे। 3p और 3s ऑर्बिटल आर मिक्स्ड फॉर्मिंग 4sp3 ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये बता रहे हैं कि s और p के जो है वो मिल जाएंगे और फिर वो जो है 3p और 3s के ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, इसलिए हम कहेंगे 4sp3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। एवरी of these 4 orbitals is occupied by 1 electron that can form a covalent bond. अब चूंकि हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हर बॉन्ड ऑर्बिटल में, तो 4 ऑर्बिटल बन गए हैं। तो 4 ऑर्बिटल का मतलब ये है हर एक एक शेयरिंग करेगा, तो 4 दूनी 8, यानी ऑक्टेट रूल के तहत जो है वो उसकी तादाद 8 हो जाएगी। और उसके बाद जो है all bonds have the same length and the angles between the bonds are equal with 109.5 degree. The number of bonds and that an atom has with its immediate neighbors in the atomic structure is called the coordination number or coordination. Thus, in single crystal silicon, the coordination number for silicon atom is 4. We can also say that silicon atoms are 4-fold coordinated. A unit cell can be defined from which the crystal lattice can be reproduced by duplicating the unit cell and stacking the duplicates next to each other. Such a regular atomic arrangement is described
एज ए स्ट्रक्चर विद लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये इसने बताया कि कैसे सिलिकॉन एटम जो है उसका क्रिस्टल बन रहा है। एक तो उसने ये बताया कि उसके अंदर जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, उनके दरमियान में एंगल बताया 109.5 होता है। और वो जो है कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो सिलिकॉन में 4 होते हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और फिर कहता है यूनिट सेल जो वजूद में आएगा वो इसी तरह से एक से दूसरे एटम और फिर वो आगे जो है और एटम जो है उनकी स्टैकिंग होगी, और इस तरह से ये डुप्लीकेशन के तहत पूरा लॉन्ग ऑर्डर या एक क्रिस्टल वजूद में आ जाएगा। यहाँ तक आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ये जब यानी ख़त्म होती है तो हमने जल्दी लगा दिया था, दूसरा भी शेड्यूल कर दिया था, तो 5 मिनट के बाद ही ना 11:30 पे ख़त्म होता है, तो वो दूसरा जो है ना 11:35 पे शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने जो शेड्यूल किया था उसको वो किया था 11:45 से 11:45 से शुरू किया था। तो अगर वो जो है ना वहाँ तक ये नहीं जाता 40 तक, शायद ये चला जाएगा 40 मिनट तक। उसके बाद जो है 5 मिनट का वक्फा होगा तो हम दोबारा से इधर ही आ जाएंगे। ए डायमंड लेटेस यूनिट सेल represent the real lattice or structure of monocrystalline silicon। तो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में जो डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और वो 6.1a में दिखाया है, जो ऊपर हमने पहली शक्ल देखी थी। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सेल है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की बी में है। और वन कैन डिटरमिन ए दैट फिगर जो ए में दी हुई है दैट देयर आर 8 सिलिकॉन एटम्स इन दी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक जो यूनिट सेल बन रहा है उसमें 8 एटम बनते हैं। तो 8 सिलिकॉन एटम्स जो हैं एक यूनिट सेल में होते हैं। वैन ए लेटेस्ट कांस्टेंट जो है क्रिस्टल सिलिकॉन का वो 5.4 एंगस्ट्रॉम है। यानी उसका ये बॉन्ड बता रहा है कि एक सिलिकॉन एटम से दूसरे सिलिकॉन एटम का जो फासला होता है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम होगा। और one can easily calculate that the density of atom is approximately 5 into 10 raised to the power 22 per cubic centimeter। ये उसकी डेंसिटी होगी। और फिर ये कहता है कि ये फिगर ए जो है ये भी बताती है कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है विद नो फॉरेन एटम्स, उसमें कोई फॉरेन एटम नहीं है। In practice, a semiconductor sample always contains some impurity atom। लेकिन जब हम p टाइप के n टाइप के जो डोपिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई impurity atoms भी होते हैं। तो when the concentration of impurity atoms in a semiconductor is insignificant, we refer to such semiconductor as an intrinsic semiconductor। यहाँ पे इसने ये टर्मिनोलॉजी समझाई है कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट ना हो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में तो फिर हम ऐसी सूरत में कहेंगे कि ये इंट्रिंसिक किस्म का सेमीकंडक्टर है, तो या जिसे हम कह देते हैं खालिस। लेकिन यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये टर्मिनोलॉजी इसने बताई है। अब चूंकि टाइम हो गया हम बाद में वापस आते हैं। आवाज आ रही थी अभी तक? मतलब आवाज नहीं आ रही? अभी 40 तो हो गए, 11:40 तो हो गए, लेकिन इसका मतलब है आवाज 11:40 तक बरकरार रहती है। यहां से हम दोबारा से शुरू करते हैं। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप बताएं। कैसे बताएंगे जब आवाज ही नहीं आ रही? 1 मिनट रह गया बस। अच्छा, 1 मिनट रह गया है।
पूरे 11:45 पे दोबारा से शुरू करते हैं। सर रिस्टार्ट कर